So please come to your problem number 30. ये problem number 30 जो है ये notes में अभी मैंने insert किया हुआ है and this is from your material. So problem number 30 and 31 ये दो problem आपके study material की है. So please come to number 30 which is similar what we already discussed in that November 13 problem. Please come to this. डेफिनेटली ये प्रॉब्लम करने के बाद डिपार्टमेंटल करने की इच्छा नहीं रहती, पढ़ने के बाद समझेगा आपको. खैर आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि नवंबर 13 का बेस आपके पास है. ठीक है. एनीवे कम टू दैट नंबर 30. ग्रामोद्योग का लिटिल स्टोर हैज टू डिपार्टमेंट्स खादी एंड सिल्क फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट्स आर केप्ट. अभी हमारे पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट था. ठीक है. अभी हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, Khadi and silk, for each of which stock account and markup accounts are kept. All the goods supplied to each department are debited to the stock account at cost plus markup, which together make up the selling price of the goods, and in the account of the sale proceed of the goods are credited. The amount of markup is credited to departmental markup account. If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, the reduction marked down is adjusted both in the stock account and departmental markup account. The rate of markup for the Khadi department is 33.1/3% of the cost, and for silk department it is 50% of the cost. तो दोनों का markup अलग अलग है. The rate of markup for Khadi 33.1/3 and for silk 50% of the cost. The following figures have been taken from the books for the year ended December 31st, 2012. Khadi department and silk department. Stock on 1st January at cost 10,500, 18,600. Purchases 75,900 and 93,400. Sales 95,600 and 1,25,000. Adjustment दी आपको number 1. The stock of Khadi on January 1, 2012 included goods the selling price of which had been marked down by rupees 1,260. These goods were sold during the year at the reduced price. Certain stock of the value rupees 6,900 purchased for Khadi department were later in the year transferred to silk department and sold for rupees 10,350. As a result, though cost of the goods is included in Khadi department, the sale proceeds have been credited to silk department. So खादी डिपार्टमेंट ने परचेस किया लेकिन सेल्स उसका सिल्क डिपार्टमेंट हुआ. सो ड्यूरिंग द ईयर खादी डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू सिल्क डिपार्टमेंट, लेकिन खादी डिपार्टमेंट जो सिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया उसकी ट्रांसफर एंट्री नहीं हुई आपकी. तो परचेस अभी भी खादी के पास है और सेल्स की फिगर सिल्क डिपार्टमेंट में. तो खादी ने जो सिल्क को ट्रांसफर किया है उसकी एंट्री नहीं हुई है. और एक अच्छा हुआ कि जितना ट्रांसफर किया हुआ पूरा का पूरा सेल हो गया, स्टॉक में कुछ नहीं बचा, नहीं तो स्टॉक रिजर्व आ जाता. खैर आगे ऐसा कुछ होगा. और नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर 2012 टू प्रमोट सेल्स द गुड्स वेर मार्क डाउन एज फॉलोज. कॉस्ट एंड मार्क डाउन. खादी 5,600 मार्क डाउन बाय 360 एंड सिल्क 10,000 मार्क डाउन बाय 2,000. ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू रुपीज 5,000 मार्क डाउन बाय रुपीज 1,000. तो रुपीज देखो ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेर सोल्ड. देखो दोनों डिपार्टमेंट के गुड्स अपने मार्क डाउन किए हुए. खादी के जो 5,600 के गुड्स है, दिस आर मार्क डाउन बाय 360 एंड सिल्क के जो 10,000 दिस आर मार्क डाउन बाय रुपीज 2,000. सो क्या हुआ है, ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क. इसका मतलब खादी का जो 5,600 कॉस्ट वाला 360 से मार्क डाउन किया वो पूरा सेल हो गया. लेकिन जो सिल्क जिसकी कॉस्ट 10,000 मार्क डाउन 2,000 उसके बारे में क्या हुआ, वेर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू 5,000 marked down by rupees 1,000. ठीक है. So 50% sold, 50% not sold. At the time of stock taking on December 31st, 2012, it was discovered that Khadi cloth of the cost rupees 390 was missing, and it was decided that the amount be written off. You are required to prepare for both the department for the year 2012 memorandum stock account and memorandum markup account. So बिल्कुल अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस किया बिल्कुल उसी टाइप का है. सिर्फ यहाँ पर
दो डिपार्टमेंट्स का है, ठीक है। सो डू वन थिंग, यू प्लीज ओपन योर खादी डिपार्टमेंट एंड सिल्क डिपार्टमेंट, दोनों के स्टॉक मार्कअप। सो हियर पॉइंट नंबर खादी डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट and Khadi department markup account. Similarly, Silk department stock account and Silk department markup account. Formats are ready. Okay. So again, बिल्कुल सेम टाइप का प्रॉब्लम है. अगेन यू हैव टू प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट. दैट स्टॉक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड विद कॉस्ट प्लस मार्कअप. वो मार्कअप आप मार्कअप अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. किसी वजह से अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कम करना पड़े, मतलब जो मार्कअप किया हुआ है वो अगर मार्क डाउन करना पड़े, तो मार्क डाउन आपको स्टॉक एज वेल एज आपके मार्कअप अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट इज योर मार्कअप परसेंटेज? यू जस्ट जॉइन द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट पैरा थर्ड लास्ट लाइन. ठीक है. First para third last line, the rate of markup for Khadi department 33 1/3% of cost, and for silk department it is 50% of cost. Khadi के लिए 33 1/3 and silk के लिए 50% of cost. So very first information आपको दी है Khadi department and silk department. So stock on 1st January at cost 10,500 18,600. So stock में आएगा to balance brought down, to balance brought down cost and markup. So खादी के लिए cost है 10,500. सिल्क के लिए to balance brought down under that cost and markup. सिल्क के लिए cost है 18,600. अब इसमें हमको मार्कअप ऐड करना है, लेकिन एक एडजस्टमेंट है यहाँ पर. आप जरा फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आए.
द स्टॉक ऑफ खादी ऑन जनवरी 1st 2012, तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बता रहे हैं आपको. द स्टॉक ऑफ खादी ऑन जनवरी 1st 2012 इंक्लूडेड गुड्स the selling price of which had been marked down by rupees 1260. These goods were sold during the year at the reduced price. देखो ओपनिंग स्टॉक जो खादी के पास है उसकी कॉस्ट है 10,500, ठीक है. अब इसके ऊपर आपका मार्कअप कितना है? 10,500 का 33 1/3 3,500, बराबर. इसका मार्कअप है 3,500, लेकिन वो जो मार्कअप जो है ना आपका, वो ओरिजिनली आपका मार्क डाउन करके लिया हुआ है आपने. कितने से? 1260. रीड इट अगेन. देखो ड्यूरिंग देयर हम जो परचेस करके मार्क डाउन करते ना वो तो है, लेकिन यहाँ ओपनिंग का ऑलरेडी मार्क डाउन करके लिया हुआ है आपने. रीड इट अगेन. नंबर 1 एडजस्टमेंट. स्टॉक ऑफ खादी ऑन जनवरी 1st 2012 इंक्लूडेड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन मार्क डाउन बाय 1260. ड्यूरिंग देयर मार्क डाउन नहीं करना है, ओरिजिनली मार्क डाउन आया आपको 1260. आर गेटिंग हियर? इसका मतलब है इसका जो मार्कअप है ना 1/3 से आता है आपका 10,500 का 33.33% कम्स टू 3,500, बट दैट इज अपने आप में वो मार्क डाउन करके लिया हुआ है 1260. इसका मतलब इसका जो मार्कअप है इट इज 10,500 इंटू 1/3 माइनस 1,260. सो इसका मार्कअप कितना? 2,240 आएगा. 2,240 एंड देन दिस इज आउटर में 12,740. यू गॉट इट? अगर ये वर्डिंग नहीं होती तो हम सीधा करते 10,500 एंड 3,500, आउटर में था 14,000. बट ये ओरिजिनली मार्क डाउन किया हुआ है आपका. ओपनिंग स्टॉक ओरिजिनली मार्क डाउन है, ठीक है. तो मार्कअप में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,240. 2,240. गॉट इट? हालांकि सिल डिपार्टमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, सिल का तो कुछ नहीं है. तो सिल के लिए 18,600. मार्कअप कितना आपका? 50% ऑन कॉस्ट. तो 18,600 का 50% कम्स टू हाफ 9,300. आउटर में 27,900. इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये मार्कअप को क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,300. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,300. क्लियर? समझ में आ गया? यस. आगे परचेसेस. खादी का 75,900. सो खादी को आप डेबिट करेंगे टू परचेसेस. इधर में 75,900 एंड अगेन आपको डेबिट करना पड़ेगा टू मार्कअप अकाउंट 33 1/3 ना. तो 75,900 का 33 1/3 इज 25,300. कॉस्ट प्लस मार्कअप से डेबिट करना आपको टोटल. सो इन द आउटर कॉलम इट कम्स टू 1,01,200. और ये जो आपका मार्कअप है 25,300, खादी डिपार्टमेंट स्टॉक को डेबिट टू मार्कअप को क्रेडिट बाय खादी डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट 25,300. गॉट इट? सिमिलरली सिल्क का आपका परचेस है 93,400. सो बिल्कुल सेम आएगा. सिल्क को डेबिट कर दो टू परचेसेस अकाउंट 93,400. अगेन टू मार्कअप अकाउंट 93,400 और इसका परसेंटेज 50% है. सो दैट कम्स टू 46,700. सो दोनों मिलाकर 1,40,100. इज इट? 1,40,100. और ये जो मार्कअप आपका 46,700 है, मार्कअप को क्रेडिट होगा बाय सिल्क डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट.
46,700, 46,700. Got it? Then sales 95,600 and 1,25,000. तो ठीक है, खादी का सेल्स खादी के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स अकाउंट 95,600 एंड सिल्क का सेल 1,25,000. सो सिल्क को आएगा क्रेडिट बाय सेल्स 1,25,000. देन ये लिया बाय सेल्स. फर्स्ट नंबर की एडजस्ट हो चुकी है. नंबर 2, certain stock of the value of rupees 6,900 purchased for khadi department were latter in the year transferred to silk department and sold for rupees 10,350. so khadi department ने purchase किया 6,950 में, जो कि silk department ने sell किया 10,350. as a result, though cost of the goods is included in khadi department, the sale proceeds have been credited to silk department. अब खादी ने परचेस किया, खादी डिपार्टमेंट में परचेस किया और सिल्क डिपार्टमेंट में सेल हो गया. तो परचेस की एंट्री इस खादी डिपार्टमेंट के परचेस में आ चुकी है और सेल्स की एंट्री सिल्क डिपार्टमेंट के सेल्स में आ चुकी है. लेकिन इंटरनल ट्रांसफर एंट्री पेंडिंग रहेगी ना आपकी. खादी ने जो सिल्क को दिया उसकी ट्रांसफर एंट्री रहेगी आपकी. ठीक है. सो ये कैसे किया जाएगा? नाउ दिस खादी डिपार्टमेंट स्टॉक इज ट्रांसफर टू सिल्क डिपार्टमेंट. तो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट होगा? डेबिट किसे होगा? सिल्क डिपार्टमेंट को दिया ना हमने, तो सिल्क स्टॉक को डेबिट आएगा और क्रेडिट किसे जाएगा? खादी स्टॉक को क्रेडिट जाएगा. ठीक है, लिखना मत आप लोग, रुको जरा. सो बाय सिल्क डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट, कॉस्ट कितनी इसकी? 6,900. 6,900. अब जब यहां से स्टॉक जाएगा तो मार्कअप को भी साथ में लेके जाएगा, क्योंकि जब आप डेबिट करते हो, जब स्टॉक आपके पास आता है, यू आर डेबिटिंग कॉस्ट प्लस मार्कअप. अब जब आपने ट्रांसफर किया तो कॉस्ट भी जाएगी और मार्कअप भी जाएगा उसमें. सो दिस इज बाय मार्कअप अकाउंट 33/1/3 2,300. सो दैट इज 9,200. सो मार्कअप को आएगा डेबिट टू खादी डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट 2,300. गॉट इट? अब ये खादी को क्रेडिट हो गया और आपने सिल्क को दिया ना, तो सिल्क के डेबिट में आएगा टू खादी डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट 6,900. This is to be debited at cost plus markup. तो मार्कअप कितना आपका? 50%. Cost is 6,900. Don't take the cost 9,200. Cost is 6,900. इसको मार्कअप भी डेबिट किया जाएगा. So to मार्कअप, इसका मार्कअप 50% है. 50% है. 6,900 plus 50%, 3,000. So total 10,350, and that's why this is sold for 10,350. You got it? सिल्क वाला क्या करेगा? कॉस्ट प्लस मार्कअप से सेल करेगा ना. तो आपको सेल्स की फिगर दी है. हाउ मच इट इज? 10,350, and that 10,350 is already included in this 1,25,000. Got it? Yes. So this 3,450, ये जो मार्कअप है, मार्कअप को क्रेडिट आएगा बाय सिल्क डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट 3,450. क्लियर? प्लीज राइट डाउन. सचिन दोनों दिखाओ. खादी ने ट्रांसफर किया इसलिए खादी के क्रेडिट में, और जब जाएगा तो कॉस्ट और मार्कअप. सो मार्कअप को हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, मार्कअप को यहाँ डेबिट हो गया. जब सिल्क को मिला तो सिल्क वाला डेबिट करेगा इसको एट कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट 50%. तो यहाँ 50% से प्रॉफिट मार्कअप किया आपने 3,450, एंड दिस मार्कअप विल बी क्रेडिटेड टू मार्कअप अकाउंट.
तो लिख के लिए मैं समझाता हूँ। सो लिख दिया आपने? हाँ बताओ क्या क्वेरी थी? कौन सा वाला कह रहा तू? ये वाला? लिसन, एक मिनट। सबसे पहले गुड्स किसने परचेस किए? खादी ने परचेस किए। कितनी कॉस्ट थी? 6,900। ठीक है, तो जब आपने परचेस किया, दैट परचेस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस 75,900। कुल मिलाकर जो 75,900 का परचेस है उसमें 6,900 इसमें इंक्लूड है, इसका मार्कअप भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये 25,300 मार्कअप यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पर कि ये जो आपके पास स्टॉक है इसमें से 6,900 के गुड्स आपने सिल को दे दिए, मतलब वो आपने बेचे नहीं तो उसका प्रॉफिट भी आपको नहीं होगा। इसलिए जो गुड्स हमारे पास आए तब हमने स्टॉक को डेबिट किया। अब वो गुड्स जब गए तो स्टॉक को हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट कितने से हुआ था? कॉस्ट प्लस मार्कअप से डेबिट हुआ था, इसलिए क्रेडिट कितने से होगा? कॉस्ट और मार्कअप, क्योंकि डेबिट करते हो तो आपने कॉस्ट और मार्कअप लिया था। अब जब जाएगा तो भी कॉस्ट और मार्कअप से जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉस्ट, ये उसका मार्कअप, सो दिस इज बाय मार्कअप, सो मार्कअप को डेबिट आ गया, उतना मार्कअप कैंसिल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? देन ये 6,900 ये हमने दिया किसे? किसको दिया हमने? सिल्क को दिया। लेकिन सिल्क का जो परचेस है 93,400 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि सिल्क ने जो सेल किया वो इस 125 में इंक्लूड है, लेकिन जो खादी से आया वो सिल्क के पास रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए सिल्क वाला रिकॉर्ड करेगा एट कॉस्ट प्लस मार्कअप। सो कॉस्ट 6,900 एट डिपार्टमेंटल कॉस्ट नहीं दिया उन्होंने, एट कॉस्ट इज गिवन ओनली। ठीक है, सो कॉस्ट 6,900 और डेबिट कितने से करेंगे आप? प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट प्लस मार्कअप। सो कॉस्ट, इसका मार्कअप 50% है, ये डेबिट हो गया। सो टू मार्कअप 3,450, मार्कअप को क्रेडिट बाय सिल्क डिपार्टमेंट 3,450। और कितना आपका ये टोटल? 10,350। यही तो बताता है कि सिल्क डिपार्टमेंट का सेल्स भी 10,350 है। इट मीन दिस इज नॉट सोल्ड एनीथिंग मार्क डाउन। क्लियर? अब कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो आगे नेक्स्ट। Adjustment number 3. During the year 2012, to promote sales, the goods were marked down as follows. तो जो goods आपने already purchase किए, already markup से आपने debit भी करके लिया, these goods are marked down. During the year 2012, to promote sales, the goods were marked down as follows. खादी cost 5,600, marked down by 360. Cost कम नहीं की, उसका जो markup था ओरिजिनल वो 360 से आपने कम कर दिया। सो मार्कअप कम कर दिया, सो दैट मार्कअप विल बी एडजस्टेड। तो मार्कअप जब करते हो तो आप स्टॉक को डेबिट करते हो, वो आपने
गुड सेल करने के लिए आपने उसकी प्राइस कम कर दी, मतलब प्रॉफिट 360 से कम कर दिया, सो मार्कअप में सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है आपको. सो दिस इज बाय मार्कअप अकाउंट 360, लिख दो मेरे साथ साथ में. एंड खादी डिपार्टमेंट को डेबिट आएगा टू खादी डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट 360. पहले जो आपने मार्कअप कराया था ना, might be this 25,300, this 25,300 is reduced by 360. so कॉस्ट को कुछ नहीं किया, मार्कअप जो था वो कम किया है. ठीक है. सिमिलरली सिल्क का जो 10,000 है दैट इज मार्क डाउन बाय 2,000. सो अगेन सिल्क डिपार्टमेंट स्टॉक को क्रेडिट बाय मार्कअप अकाउंट. मार्क डाउन हो गया मतलब ये मार्कअप को क्रेडिट हो गया, फिर स्टॉक को क्रेडिट और मार्कअप को डेबिट, रुपीज 2,000. and here markup को debit to silk department stock account 2,000. clear? all the goods marked down were sold except silk of the value 5,000 marked down by 1,000, marked down by rupees 1,000. तो ठीक है, उसका स्टॉक निकालते तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे पिछले प्रॉब्लम में 400 का हमने किया था, वैसे इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको. नंबर 4, एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन December 31st 2012 it was discovered that khadi cloth of the cost rupees 390 was missing. khadi cloth of the cost 390 was missing and it was decided that the amount be written off. सो खादी डिपार्टमेंट का जो स्टॉक आप कर रहे थे यहाँ पर, तो उसमें पता चला कि कुछ स्टॉक जो है इट इज मिसिंग, सो देयर इज अ शॉर्टेज. और जो शॉर्टेज उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी 390. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए आप शॉर्टेज, कॉस्ट इज 390. अब ये जो क्रेडिट होगा आपका बाय P&L 390, ये तो कॉस्ट, ठीक है. लेकिन आप इस अकाउंट को डेबिट करते हो तो कॉस्ट और मार्कअप लेते हो ना, तो अभी भी क्रेडिट कितने से होगा, कॉस्ट एंड मार्कअप से. तो इसमें हमको मार्कअप भी लेना पड़ेगा बाय मार्कअप अकाउंट 130, 33 1/3 है ना, सो 390 का 1/3 130. सो टेकन टुगेदर इज 520 एंड मार्कअप को डेबिट टू खादी डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट 130. गॉट इट? क्लियर सबको? अच्छा, वैसा सिल्क डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है. क्लियर? या सिंपल. नाउ प्लीज क्लोज योर स्टॉक अकाउंट. खादी का स्टॉक निकालो. कितना ये टोटल? $1,05,680. डेबिट, हाँ डेबिट की टोटल कितनी है? 1,13,940. उसमें से 1,05,680 ना लेस कर दो और देखो कितना था यहाँ बैलेंस. बाय बैलेंस कर इट डाउन, प्लीज फाइंड आउट. डेबिट ज्यादा है 8,260. 8,260. इज इट? अब एक मिनट ना, 3 नंबर की एडजस्टमेंट है ना, उसमें जो स्टेटमेंट दिया है उसके नीचे की लाइन आप पढ़ो. ऑल द गुड्स मार्क डाउन वेर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू 5,000 मार्क डाउन बाय ₹1,000. तो खादी और सिल्क दोनों हमने मार्क डाउन किए, लेकिन सिल्क का जितना हमने मार्क डाउन किया था पूरा का पूरा सेल नहीं हुआ, वो अभी भी कुछ स्टॉक में. सिल्क वाला स्टॉक में
मार्कडाउन किया लेकिन अभी भी स्टॉक में सिल्क वाला है, खादी का कुछ है क्या? नहीं। इसका मतलब है खादी का जो भी स्टॉक है 8260 इट इज एट इट्स मार्कअप वैल्यू के साथ है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है आपकी। जो कुछ मार्कडाउन किया था वो ऑलरेडी सेल हो चुका है। इसका मतलब जो स्टॉक खादी के पास है, जो स्टॉक खादी के पास है वो कॉस्ट प्लस मार्कअप वैल्यू से है। गॉट इट? सो 8260 में कितना मार्कअप है? 33 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सो 8260 का 25% 2065, ये आपका मार्कअप अकाउंट का बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर किसी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है आपको। 8260 इंटू 25%, 2065। So difference is 28 22,685 to profit and loss account. 22,685. Is it? Is it very clear? 22,685. ठीक है, हम 2 मिनट में इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे वेदर 22,685 इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, अब बताओ ये खादी डिपार्टमेंट का सेल कितना हुआ? 95,600। अब ये सेल्स करते वक्त दो आइटम हमने रेगुलर सेलिंग प्राइस से कम में सेल किए। एक तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था ना 10,500, इट वाज ओरिजिनली इसका मार्कअप था 3,500, बट 1,260 हमने मार्क डाउन किया था और वो जितना मार्क डाउन किया था 1,260 उसी रिड्यूस प्राइस पे सेल हो गया। अगर ये ओरिजिनल मार्कअप से ही अगर सेल होता तो आपका सेल 1,260 से बढ़ जाता। हालांकि हमने मार्कडाउन से बेचा है, लेकिन नॉर्मल इसमें आपका अगर सेल होता तो ये 1,260 से आपका सेल्स इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो आपका जो सेल्स है 95,600 उसमें ऐड कर लो 1,260, कैलसी कर लो आप। 95,600 प्लस 1,260 प्लस वो खादी का स्टॉक जो 5,600 था वो भी 360 से आपने कम में सेल किया। नॉर्मल से करते तो वो 360 से सेल्स आपका और बढ़ जाता। सो इट वुड बी 95,600 प्लस ये 1,260 प्लस 360, योर सेल्स वुड हैव बीन 97,220। इसका 25% करो आप, 24,305। लेकिन जो सेल्स आपने कम में किया उससे तो प्रॉफिट ही कम हुआ ना आपका। कितना प्रॉफिट कम हुआ आपका? 1,260 एंड 360 कम सेल किया, तो 24,305 में से 1,260 एंड 360 लेस कर दो, 22,685। दिस इज व्हाट 22,685। अकाउंटिंग आप कैसे भी करें फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर सबको? चलो एक काम करो, इसका वर्किंग आप लिख के रखो। स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में कर दो खादी डिपार्टमेंट, खादी डिपार्टमेंट, राइट डाउन सेल्स 95,600, add opening stock sold at markdown 1,260, add stock sold at mark 360,
sales at a regular price or a regular markup how much 97,000 97,220 therefore normal GP 97,220 into 25% 24,305 24,305 less markdown तो जो आपका सेल्स हुआ उसमें ओपनिंग स्टॉक 1260 प्रॉफिट कम करके बेचा और ड्यूरिंग द जो परचेस किया और मार्कडाउन करके सेल किया वो 360 सो ये दोनों मिलाकर 1620 इतना आपका मार्कडाउन है therefore एक्चुअल जीपी 22,000 कितना था 685 22,685 is it $22,685 is it yes now come to your sale department for this sale department find out closing stock टोटल कितनी आती है 1,78,350 1,78,350 by balance carried down how much 51,350 ठीक है अब ये 51,350 ये जो आपका स्टॉक है दिस इज नॉट एट नॉर्मल मार्कअप क्योंकि इसके अंदर एक स्टॉक ऐसा भी है जो कि हमने मार्क डाउन करके लिया है और हमारा क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है ठीक है वो कौन सा है आपका 3 नंबर की एडजस्टमेंट जो आपको दी थी ड्यूरिंग द ईयर 2012 टू प्रमोट सेल्स द गुड्स वे मार्क डाउन वाज एज फॉलोज उसमें सिल्क 10,000 कॉस्ट वाला मार्क डाउन किया था 2000 से राइट अब उसके बारे में क्या हुआ all the goods marked down were sold except silk of the value 5,000 marked down by rupees 1,000 इसका मतलब है ये जो 51,350 है इसमें ये जो आपका सिल्क जो 10,000 का स्टॉक 2000 से मार्क डाउन किया था उसमें से 5,000 वाला 1,000 से मार्क डाउन किया वाला अभी भी आपके पास है तो वो जो 5,000 का जो 1,000 से मार्क डाउन किया वाला आपके पास जो स्टॉक में है अगर वो मार्क डाउन नहीं होता तो दिस स्टॉक वुड हैव बीन 51,350 प्लस 1,000 दिस वुड बी 52,350 और फिर उसमें आता आपका मार्कअप ठीक है तो एक वर्किंग करेंगे आप दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्कअप सिल्क डिपार्टमेंट closing balance of markup for silk department उसमें लिखा आप closing stock as per stock account 51,350 51,350 add closing stock marked down by closing stock marked down by 1,000 therefore closing stock at normal markup
52,350, 52,350 विथ नॉर्मल मार्कअप के साथ, ठीक है। देयरफॉर मार्कअप बैलेंस इक्वल टू 52,350 इंटू 25%, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज आपका कॉस्ट प्लस 33/3 है। कॉस्ट पे 33/3 ना, का 50 है क्या, ठीक है। कॉस्ट पर 50 है, अच्छा वो खादी का था 33, ठीक है। सिल्क में आपका कॉस्ट प्लस 50 है, कॉस्ट प्लस 50, तो टोटल का 33/3 17,450, तो मार्कअप होता आपका 17,450, लेकिन मार्कअप में 1000 रुपए आपने कम किए हुए, ठीक है। सो लेस मार्क डाउन 1000, तो जो 1000 आपने ऐड किए थे वो नॉर्मल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, हालांकि 1000 मार्कअप से कम किए गए थे आपके, तो नॉर्मल मार्कअप जो 17,450 था 1000 से कम होके 16,450, देयरफॉर एक्चुअल बैलेंस ऑफ मार्कअप अकाउंट, एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस, एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ markup account 16,450. Got it? So come to your silk department. इसमें आप लिखेंगे डेबिट में एक दो लाइन छोड़ दो एंड देन से टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,450. So this is to profit and loss account 41,000. Got it? Is it 41,000? Yes. ठीक है। अच्छा ये 41,000 में आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। हाउ इट इज, सिल्क का सेल कितना हुआ 1,25,000, उसमें ओपनिंग वाला तो कोई मार्कडाउन नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग द जो 10,000 से परचेज किया था वो 2,000 से मार्कडाउन किया था आपने, लेकिन उसमें से 5,000 का स्टॉक में है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो 10,000 का 2,000 से मार्कडाउन किया उसमें से 5,000 वाला 1,000 से जो मार्कडाउन हुआ वो तो सेल हो गया। अगर वो 1,000 मार्क डाउन सेल नहीं होता तो 1,000 से आपका सेल बढ़ जाता, राइट। तो आपका जो सेल्स है वो होता 1,25,000 प्लस 1,000, कितना सेल होता 1,26,000। वेरी क्लियर, 1,26,000 का 1/3, 1,26,000 का कॉस्ट पर 50%, सो सेल्स का 33/1/3, तो आपका नॉर्मल सेल होता 1,26,000 इंटू 1/3 दैट इज 42,000, और 1,000 रुपए आपने प्रॉफिट कम से सेल किया, सो 42,000 माइनस 1,000 इट इज 41,000। योर आंसर इज 41,000। नाउ दिस इज क्लियर, उसका स्टेटमेंट आप लिख के रखो। चलो स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में करेंगे आप सेल डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, राइट डाउन एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स 1,25,000, actual sales 1,25,000, add markdown sales, add markdown sales 1,000, therefore sales at normal selling price, sales at normal selling price
सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना 1,26,000. Therefore normal GP or expected GP we can say 1,26,000 into 1/3 मतलब ही 33.33% 42,000. तो 42,000 आपका प्रॉफिट होना चाहिए था. लेस मार्क डाउन रुपीज 1,000. कितना therefore actual GP 41,000. Got it? समझ में आ गया? अब नहीं पूछा लेकिन फिर भी हम इस प्रॉब्लम के लिए बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, दोनों के लिए हम सेपरेट बनाएंगे यहाँ पर. ठीक है, दोनों के लिए सेपरेट बनाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका. ट्रेडिंग अकाउंट मैं यहाँ बना लेता हूँ. खादी डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट. So here very first to opening stock at cost कितना था वो 10,500. then to purchase it was 75,900 75,900. then buy sales 95,600. कंप्लीट करो आप. चलो ध्यान रहे खादी डिपार्टमेंट ने सिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफर भी किया हुआ है. तो जो ऑलरेडी आपके पास इस परचेज में इंक्लूड है वो बाय ट्रांसफर टू सिल्क 6,900 वो लेना मत भूला. बाय ट्रांसफर टू सिल्क सिल्क को दिया ना आपने इज अ काइंड ऑफ अ सेल एट कॉस्ट 6,900. देन बाय शॉर्टेज भी तो हुआ at cost 390 and then buy closing stock तो at cost इसकी मार्कअप वैल्यू दी आपकी 8,260 माइनस इसका प्रॉफिट आपका 2,065. तो कितना था ये 6,195 ना. So if you close the account
to GP carried down. How much? 22,685. Is it? और पहले कितना आया था आपका मार्कअप अकाउंट में? इट मस्ट बी 22,685. ये उन्होंने वर्किंग भी किया है 22,685. देन सिल्क डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट. So very first it is to opening stock. At its cost it was 18,600. Then to purchase 93,400. Then to transfer from खादी डिपार्टमेंट, खादी से आपको आया एट कॉस्ट 6,900. फिर आपका सेल्स बाय सेल्स 1,25,000 और सिंपली बाय क्लोजिंग स्टॉक इट इज 51,350 माइनस उसके अंदर का प्रॉफिट 16,450. 34,900. To GP carried down. How much? Is it 41,000? क्लियर सबको?